Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jan Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jan Vallabha Girivardhari Yashodanandan Vrajjana Ranjana Yashodanandan Vrajjana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। दाई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna. We are very happy to have the association of His Grace Prem Ras Prabhu today. So His Grace Prem Ras Prabhu is a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and he is a member of Shri Shri Radha Gopinath Mandir, ISKCON Chowpatty community. He did his graduation from Mumbai University, and later for his masters he went to University of Florida. And there he came in contact with the devotees at the Gainesville Temple, where the Food for Life program goes on for many decades. It started during Srila Prabhupada times. And a lot of the students get attracted, and they have concepts like Krishna House and other ways of preaching. So he got connected there. As such, he was spiritually minded from his very childhood. But then, as we know that our spiritual thoughts and practices get consolidated only when we come in touch with ISKCON and Srila Prabhupada's mission. Till then, it's very hodgepodge, very unorganized. So there he became a serious practitioner. He received initiation there. And he developed a very, very special interest in reading Srila Prabhupada's books and the books of other acharyas. So many of us struggle to read Srila Prabhupada's books, all books at least once in this lifetime. But his reading speed and interest is such that he has read all Srila Prabhupada's books several times, along with the letters. I am reading for the last 3 years. This Vyas Puja, I'll hopefully complete reading letters. But he read all the letters also, and along with the conversations. And then as Srila Prabhupada recommended to read other Acharya's commentary, then he has been reading the other commentaries translated by His Holiness Bhanu Swami Maharaj, His Gopi Paranadhan Prabhu and others. So he's very well read, understanding the Tattva of Gaudiya Vaishnavism very, very nicely, clearly. So after his post-graduation, then he came back to India and he started a business. So he's currently a businessman, family man, practicing Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness, very dynamic, enthusiastic devotee. He has compiled this book, 20 must-know facts about Hinduism, because there's a lot of confusion in the name of Hinduism. So he presents doubts about Hinduism, doubts about God, doubts about ISKCON in a very systematic way, point-wise way. It's very appealing to the devotees also to clarify the things, and also to newcomers to know about what is Hinduism in its true sense. And the Hindi version of that book is also there, Sanatan Dharma Samshaya Bhanjan. So it's a good fortune that we have his association here. And we welcome him to Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Temple by once loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, And last but not the least, he's not only a reader of books, he's a powerful distributor of books also. So last 6 years, in individual devotees category, he has always been in top 3 Srimad Bhagavatam book distributors in the world. So he reads books, distributes books, practices books, and preaches books. So we are happy to have him here. Hare Krishna. छठा स्कंद 10वां चैप्टर और वर्स नंबर श्लोक नंबर 9। एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोके रूपासित य भूत शोक हर्षाभ्याम
आत्मा शोचति ऋष्यति एतावान् अव्ययो धर्म पुण्यश्लोकैरुपासित यो भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति ऋष्यति। माता जी एतावान इतने अव्यय अविनाशी धर्म धार्मिक नियम पुण्य श्लोक है अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासित मान्य यह जो भूत जीवों का शौक दुख से हर्षाभ्यम तथा सुख से आत्मा मन सोचती पश्चाताप करता है ऋष्यति प्रसन्न होता है। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी नहीं यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुषों के धर्म को अविनाशी माना गया है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्राकृत गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो। आत्मत्व सर्वभूतेषु दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी आधार पर बौद्धों का अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है। अहिंसा पराधर्म। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृक्ष पशु हत्या को बंद कराना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। एक और कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलाए, ऐसा संभव नहीं। यह सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की गई है। मनुष्य को दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना और उन्हें दुखी देखकर दुखी होना चाहिए। इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष। ये सभी जीवात्मा श्री भगवान की संतानें हैं। भगवद गीता
14 अध्याय श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासं ब्रह्मा महाद्योनिर बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने के कारण ही संभव है और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं के विभिन्न रूप उनके बहिर्वेश भूषाएं है। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है। जैसे कि भगवान भगवद गीता 5वें अध्याय 18 श्लोक तथा 18वें अध्याय और 54 श्लोक में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि शैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। यथार्थ ज्ञानी पुरुष विनम्र विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि वह दूसरों को दुखी देखकर शोक करते हैं और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होते हैं। वैष्णव पर दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जी को और जितने भी भक्त हैं जो मैनेजमेंट में है जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबकी सेवा करने का। तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है और जो भी मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ वो श्रीला प्रभुपाद जी और जितने भी हमारे पूर्वज आचार्य उनके टीकाओं के द्वारा। और वैष्णव जो बहुत कृपालु होते हैं तो इसके वजह से मुझे अवसर दिया है। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ, अपने आप को प्रचार कर रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य जो भी कहते हैं वो शेयर करूँगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो
तो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अलग अलग प्रकार के धर्म है। और जैसे अगर आपने कल वृंदावन प्रभु जी का लेक्चर सुना था तो बहुत अच्छा था। और उन्होंने शुरुआत की कि किस तरीके से उनका जीवन जो है, उनके जीवन से उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग धर्म का पहले फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन फिर हर धर्म में उनको कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखा। और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से कृष्ण भावनामृत जो है वो सबसे परा धर्म है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में वर्णन है कि अथा पुंबीर द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। और फिर सवै पुंसो परोधर्म यथोर्भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा संप्रसिद्धति। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके बारे में वर्णन है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चलता है कि अलग अलग तरीके के धर्म होते हैं और भगवान आते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो आते हैं हमारे धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन जो पराधर्म है वो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान एक ही कारण के आते हैं, के वजह से आते हैं। स्पेशली भगवान कृष्ण अपने असली रूप में, स्वयं रूप में। कृष्ण एते च अंशा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और हमको पता है कि किस तरीके से भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक ही दिन में आते हैं, वैवस्वत मनवंतर में, 7वें मनवंतर में। तो भगवान कृष्ण जो है वो क्यों आते हैं, तो उसका एक ही कारण बताया आचार्य ने, सिर्फ भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ भक्तों की जो तीव्रता है उसको दूर करने के लिए भगवान आते हैं, और कोई कारण नहीं है। बाकी जो कारण है, जो धर्म की स्थापना है, वो तो भगवान महाविष्णु के द्वारा, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई जो उनके पुरुष अवतार है उनके द्वारा स्थापित हो जाती है। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा की तरह, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को वध करने के लिए। लेकिन सिर्फ भगवान अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए, उनका जो वीर भाव है उसको खत्म करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो पराधर्म तो है ही, भक्तों डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज परोधर्मा। लेकिन साथ साथ में अलग अलग धर्म की स्थापना भी करते हैं। सो अभी उसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं किस तरीके से महाभारत में भगवान ने पॉलिटिक्स किया, डिप्लोमेसी की, और युधिष्ठिर महाराज को भगवान की बातों पे विश्वास नहीं था, तो थोड़े समय क्षण के लिए वो उनको नरक देखना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि जो मैं मानता हूँ जिस तरीके से धर्म होना चाहिए उसके विपरीत भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो ये भी भगवान का ही लीला थी, क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि जो पांडव है वो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। सो अब अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के धर्म है, और उसमें से सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो बहुत लॉजिकल है। जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, और बहुत सारे अनगिनत पाथ है। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर हम देख सकते हैं कि जब तक हमको पीड़ा नहीं आती है तब तक हम मोक्ष के बारे में सोचते भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको सनातन रूप से मैं ऐसा शरीर प्रदान करूं जिसमें कभी पीड़ा ही ना आए, जो जन्म मृत्यु और जरावादी के परे हो जाए, तो आप मोक्ष के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। उसका मतलब यह है कि जो सबसे आनंदित चीज़ जो इस संसार में है वो रिलेशनशिप है, आदान प्रदान करना दूसरों के साथ, राइट। जितने भी हम लोग वस्तु का भी उपयोग करते हैं, आज व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे उसमें और अगर एक भी व्यक्ति कमेंट नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, तो आप थोड़े समय के बाद पोस्ट करना बंद कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, और इसी में हमको खुशी मिलती है। और ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई मनुष्य को कोई डेजर्ट में जाके उसको आइसोलेट कर दिया, सब जितने भी उसके पास करोड़ों रुपए हो या कोई भी सामग्री हो, अगर उसको आइसोलेट कर दिया, अकेला छोड़ दिया डेजर्ट में, तो वो खुश नहीं रह सकता है। और इसी के लिए पाश्चात्य देश में भी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट है वो लोगों को अकेला छोड़ देना है, राइट। क्योंकि अगर आप अकेले होंगे तो आप क्या करोगे, आप टॉर्चर, मतलब दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टॉर्चर फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। सो इससे हमको क्लियरली समझ में आता है कि जब तक हम सुखी है, आनंदित है व्यवहारों में, तब तक हमको मोक्ष के बारे में सोचना भी नहीं है। क्यों सोचे हम, तो उसका मतलब ये है कि जो व्यवहार में जो आनंद है वो सनातन रूप से भगवत धाम में भी होना चाहिए, वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इतना आनंद मिल रहा है, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप सब व्यवहार को छोड़ दीजिए और कहाँ पे जाके अकेले रहना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप नहीं रहोगे। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड भी यही है। लोग ब्रह्मांड के बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड है क्या,
ब्रह्मांड ऐसा हमारी अवस्था है कि हमको लगता है कि हम सिर्फ एक आत्मा है, दैट्स इट। क्योंकि ड्युअलिटी नहीं है, दो चीज़ नहीं है, सब एक ही है, सब कुछ एक है ब्रह्मांड में। तो हमारे अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा। तो ये सेम चीज़ अगर हम अकेले रहते हैं जीवन में तो उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको ये चॉइस मिलता है तो हम कभी भी ब्रह्मांड में विहीन होना नहीं स्वीकार करेंगे या अकेले रहना स्वीकार नहीं करेंगे, राइट। तो उसी प्रकार से हमको ये समझ में आ जाता है क्लियरली कि जो परोधर्म है वो भगवान को सेंटर में रख के व्यवहार का आदान प्रदान सबसे श्रेष्ठ है, और वो भी निस्वार्थ भावना से। क्योंकि फर्क क्या है, अगर आप बोलेंगे कि फिर अगर व्यवहार ही करना है तो हम इस दुनिया में भी रह सकते हैं, तो इस दुनिया में रहने की वजह से हमको पीड़ा आती है, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया को इस तरह से बना दिया है, जन्म मृत्यु जरावादी में फंसा दिया है। और साथ में यहाँ पे निस्वार्थ भावना नहीं है प्रेम की, यहाँ पे स्वार्थ का भावना है। तो उसके विपरीत हम देखेंगे तो एक अगर आइडियल एक कम्युनिटी देखते हैं, लविंग कम्युनिटी, तो वो सिर्फ भगवान के धाम में है, बराबर। तो इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और बाकी सब धर्मों में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स है, क्योंकि टेम्पररी रिजल्ट देते हैं, पूरी तरीके से हमको फुल उसका रियलाइजेशन या फुल ब्लिस नहीं मिलता है उसमें। सो अब जो पहले का जो श्लोक था, तो उस प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु को और जो हमारे गोस्वामी है उनका गुणगान करते हैं। लेकिन अभी के वर्ष में हम श्री प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के कारण ही हम सब यहाँ पे हैं। और प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में हमको प्रचार के बारे में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने खुद भी बहुत बड़े सेक्रीफाइस किए हमको कृष्ण भावनामृत देने के लिए, हमको पराधर्म जो है वो देने के लिए। सो प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, और वृंदावन में सबसे जो हाईएस्ट एक्सेसी है राधा कृष्ण प्रेम का, वो अनुभव कर रहे थे। लेकिन वो छोड़ के प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए और उन्होंने हमको सबको कृष्ण भावनामृत दिया। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते प्रभुपाद जी ने कितना सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। और ऐसा अभी आप देखिए, हम लोग तड़पते हैं कब हम लोग जाएंगे, अधिक मास में या कार्तिक महीने में वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी है, वृंदावन में रहने के बाद पाश्चात्य देश में चले गए। और वृंदावन में ऐसा भी नहीं है कि वो साधक थे कि चलो हम जाते हैं वृंदावन को बाहरी दृष्टि से देखते हैं और वापस अपना कार्य करने लगते हैं। प्रभुपाद जी तो लीला में शामिल हुए थे, और प्रभुपाद जी को कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी। उनको सब जो सदगोस्वामी है साक्षात दर्शन देते थे, वहाँ पे उनका संग देते थे। ये ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़ के पाश्चात्य देश में गए। सो दूसरी बात यह है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने उनको पूछा कि प्रभुपाद, क्या कोई आचार्य जो है वो भगवान के धाम में चले जाते हैं अपना शरीर त्यागने के बाद? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, आचार्य नेवर गोज बैक टू गॉडेड। हाँ, आचार्य कभी भी भगवान के धाम में नहीं आते हैं। तो फिर वो डिवोटी थोड़े से ऐसे सरप्राइज हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या ये संभव है कि आचार्य जो होते हैं वो इस संसार में भी होते हैं और भगवान के धाम में भी साइमल्टेनियसली होते हैं? तो प्रभुपाद बोले, यस, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ आपकी बात सही है, उस तरीके से हम, तो ये भी एक तत्व है, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो भगवान के धाम में भी होते हैं और इस संसार में भी होते हैं। और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं जब हम कहते हैं कि जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो आचार्य एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं प्रचार करने के लिए, और उनके शिष्य जो है वो भी यही चाहते हैं कि हम अपने गुरु की सेवा करें निस्वार्थ भाव से। तो वो भी कोई इच्छा नहीं रखते कि हमको भागवत धाम जाना है। उनको लगता है कि हमारे गुरु यहाँ पे है तो हम क्यों भागवत धाम जाए, यही हमारे लिए भगवत धाम है। तो शिष्य भी जो है वो इच्छा करते हैं कि हम गुरु को आशीष करने के लिए जन्म पे जन्म ले। तो उस तरीके से संबंध जो है वो सनातन हो जाता है। ठीक है। तो एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जू में एक व्यक्ति आए थे, प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में थे और वो मैनेजमेंट रिलेटेड फाइनेंशियली कुछ तो वो पैसे गिन रहे थे या कुछ मैनेज कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आए बाहर से और उन्होंने देखा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी तो ऐसा नॉर्मल ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हैं सब, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को जाके पूछा कि प्रभुपाद जी, भगवत गीता में तो कहा है सतातम कीर्तयन्तो माम, राइट? जो प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है,
वो तो भगवान का 24 घंटे गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो पैसे गिन रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी थोड़े से घिरे हो गए। उन्होंने बोला कम हियर। तो आए, उनको बोला अपना सर जो है मेरे कंधे पे रखो। तो उन्होंने अपना सर जो है कंधे पे रख दिया, और अंदर से ही प्रभुपाद के बॉडी के अंदर से, प्रभुपाद बोल नहीं रहे थे कुछ, अंदर से उनके शरीर में से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे। शिला प्रभुपाद की। तो ये आचार्य जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और मटेरियल वर्ल्ड में भी है, और 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण, नाम जब चलते ही रहता है। सिर्फ हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि हम लोग बाधिक जीव है। सो अभी देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर श्लोक है तो वो दधीची मुनि ने कहा है, ये जो देवताओं को। अगर वित्रासुर के स्टोरी में भी अगर देखते हैं तो शिला विश्वनाथ ठाकुर ये बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान शिव को उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया था या फिर इंस्ट्रक्शन क्यों दिए, क्योंकि वो बताते हैं कि जब वित्रासुर ने देखा कि भगवान शिव के असेंबली में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो लोग को भगवान शिव के तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको अपराध करने से बचाने के लिए चित्रकेतु महाराज ने भगवान शिव को इंस्ट्रक्शन दिए। अदरवाइज वो कुछ भी नहीं बोलते थे। और ये इंटेंशन समझ के जितने भी भगवान शिव के पार्षद थे वो चुप बैठे रहे। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते अगर उन्होंने अपराध किया होता था भगवान के प्रति, शिव के प्रति, तो वो अपने कान बंद करके सब चले जाते थे, लेकिन वो वहीं पे बैठे रहे। सो एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि वृत्रासुर भी उसका चित्रकेतु महाराज का पतन भी हुआ, वो भी किसी का निस्वार्थ कल्याण करने में हुआ। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए कर्ज लेने को भी रेडी है। तो उसी के उदाहरण में शिला प्रभुपाद जी ने भी कर्ज लिया था। अगर शिला प्रभुपाद जी एक भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार से नारद मुनि को कर्ज दिया था दक्ष ने कि आप एक जगह पे नहीं रहोगे, तो उसी प्रकार से मेरे जो शिष्य है उनके पेरेंट्स ने मुझे एक बार कर्ज दिया था कि मैं एक जगह पे नहीं रहूंगा, और इसके लिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि ये जो कर्ज जो है जो मुझे उन्होंने दिया है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य ले ले और उनमें ट्रांसफर हो जाए, ताकि वो लोग भी एक जगह पे ना बैठे और हर जगह पे प्रचार करें भगवान के नाम का। तो ऐसा प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं। सो हमको पता चल सकता है कि कितना करुणा का भाव है जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के उन्होंने में। तो इस प्रकार से वो लोग हर शाप को भी ब्लेसिंग्स समझ के ले लेते हैं। अब दूसरी बात यह है कि प्रभुपाद जी भी नित्य सिद्ध भगवान के भक्त है, तो वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, और कृष्ण ने उनको यहाँ जाने के लिए आदेश दिया था। प्रभुपाद जी आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जब भगवान ने बोला उनको कि आई वॉन्ट यू टू गो टू द मटीरियल वर्ल्ड एंड राइट योर भक्ति वेदांत पर्पट्स, मैं चाहता हूँ कि आप जाए इस भौतिक जगत में और आपका जो कमेंट्री है वो दीजिए भक्ति वेदांत पर्पट्स के द्वारा। तब प्रभुपाद जी एग्री किए और बाद में आए इस दुनिया में। तो प्रभुपाद के जो बुक्स है वो हमारे लिए सब कुछ है। प्रभुपाद जी ने तो खुद कहा है कि माई पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। ये जो मैंने जो कमेंट्री दी है वो मेरा खुद का पर्सनल मेरा एक्सटेसी, मेरा भाव है भगवान के प्रति। सो उस कारण की वजह से प्रभुपाद जी आए। अभी देखिए हम क्या कंपैशन दे सकते हैं लोगों को। अगर निर्जल एकादशी के समय पे जब उसका फास्ट ब्रेक करना होता है नेक्स्ट दिन, तब डिवोटीज प्रसाद बांटते हैं मंदिर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद खत्म होने आता है और हमारा सबसे फेवरेट प्रसाद होता है, तो हम लोग इतना लालची होते हैं प्रसाद पाने के लिए कि कोई अगर हमारे में से लेना चाहता है तो हम लोग बहुत हिचकिचाते हैं, हम देना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे में कितनी करुणा है क्या करुणा है। हम प्रचार कर सकते हैं, भक्ति का प्रचार करना, शेयर करना, कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी बहुत ईजी है, लेकिन जब खुद का जो बहुत सबसे फेवरेट चीज़ होता है, जब उसको सेक्रीफाइस करने को आता है तो हम लोग बहुत सोचते हैं इसके बारे में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना करुणा होगा ये महान वैष्णव आचार्यों में। एक और चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए
कभी कभी ऐसा लोग समझते हैं कि जो भजनानंदी होते हैं वो प्रचार नहीं करते, वो सिर्फ भजन करते हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। क्योंकि भजनानंदी जो होते हैं और जो वो लोग जो सिद्ध पुरुष होते हैं स्पेशली, उनके हृदय में सिर्फ करुणा और करुणा होती है। तो एक उदाहरण के तौर पे एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को पूछा गया था कि एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जगन्नाथपुरी में बाबा जी वेश धारण किया था, तो वो पूरे समय सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे और कुछ प्रचार नहीं कर रहे थे। तो उनको बहुत रिपेंटेंस हो रहा था अपने मन में कि मैं लोगों का उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हारे नाम से, सिर्फ तुम्हारे नाम जप से इस पूरे दुनिया में हरिनाम संकीर्तन फैल जाएगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की। तो जो नित्य सिद्ध पुरुष जो है उनके भजन से भी वो लोगों का कल्याण का और हित का ही सोचते हैं। और तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को माध्यम बनाया। और जैसे प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपने कैसे किया, ये कैसे संभव हुआ, तो प्रभुपाद जी ने सारा श्रेय भक्तिविनोद ठाकुर को दे दिया कि अगर वो चाहते थे तो वो अकेले ही पूरे दुनिया में फैला सकते थे हरिनाम, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ तो रखा था। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको श्रेय दिया था। सो भजनानंदी जो होते हैं भले भजन करते हैं लेकिन फिर भी करुणा हमेशा हृदय में होता है, तो ये नहीं भूलना चाहिए हमको। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है तात्पर्य में कि द बेस्ट भजनानंदी, द बेस्ट घोष्ठानंदी इज द बेस्ट भजनानंदी। जो सबसे अच्छा प्रचार कर सकता है वही हो सकता है जिसका साधना सबसे स्ट्रांग है, जिसमें प्योरिटी है। तो भजन और प्रचार, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये 3 सार, पूरा भक्ति का जो मूवमेंट है उसका 3 सार में दे दिया है। नाम रुचि, नाम के लिए रुचि होना चाहिए हमारे को, वैष्णव सेवा करनी चाहिए जितना हो सकता उतना, और जीव दया। जब जीव दया और वैष्णव सेवा करेंगे तभी ही नाम में रुचि आ सकती है। अगर वैष्णव सेवा नहीं करते हैं नाम में रुचि कभी भी नहीं आ सकती है। चाहे कितना भी तप कीजिए, कितना भी जपा सेमिनार अटेंड कीजिए या कुछ भी कीजिए, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तब तक नाम में रुचि नहीं आएगी। और वैष्णव सेवा करेंगे तो नाम में अपने आप रुचि आएगी, भगवान फोर्स करेंगे हमको नाम में रुचि लाने के लिए। तो जीव दया भी है, वो भी एक तरीके से वैष्णव सेवा है, क्योंकि जीव को हम भगवान के भक्ति के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको जोड़ते हैं और इस प्रकार से वो वैष्णव बन जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है ये 3 हमेशा एक भक्त के जीवन में होना चाहिए। अब हमारा भजन इतना स्ट्रांग नहीं है। हम जो भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? 16 माला। एक्चुअली में चैतन्य चरितामृत में तो ऐसा कहा गया है कि जब तक 64 माला ना करें तब तक हम लोग फॉलन है, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा की वजह से उन्होंने 64 माला को 16 माला में हमको करके दे दिया। तो हमको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि हम भजन क्या कर रहे हैं, कितना भजन, हमारे भजन में कितना तेज है, शक्ति है। तो हम खुद से लोगों को परिवर्तित नहीं कर सकते। कली करे ना नाम धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तारा प्रवर्तन। तो कृष्णा की शक्ति के बिना हम किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल जब हम ऐसे महान वैष्णव को आशीष करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी एज अ इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम उनका सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं और उनको सहायता कर रहे हैं। तो उस तरीके से भी हम लोग भी प्रचार कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे में कोई क्षमता नहीं है। सो ये प्रैक्टिकल जैसे क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे चाहते हैं कि हर भक्त जो है वो प्रचार करे, उनके हृदय में इस तरीके का भावना है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इतने साधना के बाद, इतने सालों की साधना के बाद भी अगर प्रचार करते करते अगर हमारे खिलाफ कोई जाता है तो हमारे में देश द्वेष का भावना आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति। और हम ये नहीं सोचते कि हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है उनको कनेक्ट करने के लिए भगवान। हमारे मन में बहुत सारा काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य है। तो हम क्या प्रचार कर सकते हैं, हम क्या करुणा दिखा सकते हैं? तो इसके लिए जो शुद्ध वैष्णव है सिर्फ उनकी सहायता करनी चाहिए। और जितने हद तक हम उनको शरणागति हो सकते हैं उतने ही हद तक वो हमको एम्पावर कर सकते हैं प्रचार करने के लिए। जो लोग नित्य सिद्ध शुद्ध वैष्णव होते हैं वो लोग अपने ही शक्ति, अपने ही भजन से दूसरे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बद्ध जीव है वो लोग उनकी सहायता करके प्रचार कर सकते हैं। एक तरीका जो है
वो शॉर्ट है प्रभुपाद जी को खुश करने का, और वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सब में आपको शायद संदेह हो सकता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ क्या वो प्रभुपाद जी को, क्या गुरु महाराज को प्रसन्नता मिल रही है उसमें, या फिर और मैं इसमें कितना सुधार कर सकता हूँ। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक सेवा है, एकमात्र सेवा है जिसमें प्रभुपाद जी शॉर्ट 100% प्लीज होते हैं। तो अगर भक्त लोग प्रभुपाद जी के पुस्तक का वितरण कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम करें, अगर आपकी कोई सेवा है, कोई भी किसी भी तरह की सेवा है, उसके साथ साथ में अगर आप पुस्तक का वितरण भी करते हो तो वो बहुत प्रभुपाद जी को प्रसन्नता देता है। और हाँ, लेकिन एक चीज़ है, तो अभी प्रश्न ये है कि पुस्तक वितरण के लिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि साधना सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली उन्होंने कहा है कि 16 माला अगर कोई भक्त एक ही स्ट्रेच में करेगा तो उसको प्रभुपाद जी का एम्पावरमेंट मिलेगा। तो आपको ये नहीं भूलना है कि 16 माला जो है एक ही स्ट्रेच में आप करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार इसके बारे में कहा है। साधना, पहले तो स्वास्थ्य आता है, जो बद्ध जीव है उसके लिए स्वास्थ्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। भक्तिविनोद ठाकुर ने यह भी कहा है कि जो बद्ध जीव है उसके लिए स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब स्वास्थ्य अच्छा है तभी साधना कर सकते हैं अच्छे से, और साधना अच्छा करने के बाद ही हम सेवा सही भाव से कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, साधना अच्छी नहीं है, तो कल उठ के आप सेवा जो भी कर रहे हो उसमें आपको रुचि नहीं आएगी और आप छोड़ दोगे। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि अगर आपको पुस्तक वितरण करना है तो मेरी बुक्स पढ़ो पहले। तो मैंने सिर्फ बुक्स बांटने के लिए नहीं दी है, मैंने पढ़ने के लिए दी है। तो पहले बुक्स पढ़िए, और अगर बुक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पुस्तक वितरण भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब उस प्रभुपाद जी का मतलब ये है कि बुक्स पढ़ने से हमारे में ज्ञान आएगा, और ज्ञान से हम लोग कनिष्ठ के से लेवल से हम लोग मध्यम के लेवल पे आएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि एक बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जितना कम नॉलेज है आपके पास उतना रियलाइजेशन कम होगा। जितना नॉलेज आएगा उतना ज़्यादा रियलाइजेशन बढ़ता है, उतना कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। जितना कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ेगा आप आसानी से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कृष्ण भगवान सुप्रीम क्यों है। तो इसके वजह से पढ़ना ज़रूरी है। कि पहली बात तो है कि हमने हमेशा यही सुना है कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, कृष्ण भगवान अवतार है। अब आपको भगवान कृष्ण ने अचानक से तो रेवलेशन नहीं दिया है। जब आप जप करते हो तो भगवान ने, कृष्ण ने आपको ऐसा तभी प्रकट होकर ऐसा नहीं बोला ना कि हे मेरे प्यारे भक्त कि विष्णु और मेरे में ये अंतर है, मेरे पास 4 गुण और ज़्यादा है और विष्णु के पास 64 सिर्फ 60 गुण है, मेरे पास 64 गुण है। ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो ये जितना भी ज्ञान है हमारे आचार्य ने उसके लिए जान दे दी अपनी। तो ऐसा मत समझना कि ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान योग बढ़ता है। ज्ञान भी भक्ति है, और प्रभुपाद जी ये बार बार बताते हैं हमको। तो एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर डिवोटीज भक्त जो है अगर प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब भी वो स्लीप, ईट, मेट एंड डिफेंड एंड फॉल डाउन, ऐसा समय आएगा। ठीक है। एक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी ऐसा भी बोलते हैं, जैसे एक बार उनके और एक शिष्य के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, तो प्रभुपाद जी ने जानबूझ के टॉपिक निकाला और उनको पूछा कि आपको पता है कि मैंने ये बुक क्यों लिखा है? आपको पता है मैंने ये बुक्स क्यों लिखा है? तो वो शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए, संबंध ज्ञान देने के लिए, ताकि हमको पता चले, हमको समझ में आए। तो ऐसा 2-3 उन्होंने उत्तर दिए। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। फिर प्रभुपाद जी एंड में बोले कि मैंने ये बुक लिखे है ताकि अल्टीमेटली डिवोटीज हरे कृष्ण चैंट करें। तो एक जगह पे प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद चाहते थे कि बुक्स ना पढ़े और सिर्फ हरे कृष्ण चैंट करें। आप कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक जगह पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पतन होगा, एक जगह पे बोल रहे हैं कि सिर्फ हरे कृष्ण उसका पर्पस है। तो उसका मतलब यह है कि जो बुक्स पढ़ने का जो रीजन है वो प्रैक्टिकल सर्विस है। प्रैक्टिकल सर्विस मतलब चैंटिंग हरे कृष्णा, डूइंग सेवा। तो ये सब प्रैक्टिकल सर्विस है। अगर हम प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते हैं और सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज कलेक्ट करेंगे,
लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, तो थियोरेटिकल नॉलेज हो जाएगा वो, सिर्फ ज्ञान रहेगा, विज्ञान नहीं हो जाएगा वो, राइट। सो इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज द गोल, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर, कि सिर्फ ज्ञान कलेक्ट नहीं, हम लोग मायावादी नहीं है। मायावादी को आदत है बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने का, नॉलेज प्राप्त करने का, वेदांत सूत्र स्टडी करने का, लेकिन हम लोग मायावाद नहीं है, हम लोग भक्त है। तो भक्त का मतलब है भक्ति, भक्ति मतलब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो सेवा करना उसका अल्टीमेट गोल है। सो जितना, और हाँ, प्रभुपाद जी ने एक जगह पे श्रुता कीर्ति प्रभु शेयर करते हैं ये चीज़, तो वो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी उनके साथ में थे और कृष्णा बुक से वो पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी अचानक से बोलने लगे कि ये कृष्णा बुक इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, अगर कोई एक चैप्टर भी पढ़ेगा तो इमीडिएटली भगवान को रियलाइज कर लेगा। फिर वो बोले कि एक चैप्टर भी नहीं, अगर एक पेज भी किसी ने पढ़ा तो भी भगवान को रियलाइज कर लेंगे। एक्चुअली एक पेज भी नहीं, एक लाइन भी अगर उन्होंने पढ़ा तो इमीडिएटली भगवान को रियलाइज कर लेंगे। और अंत में बोलते हैं एक लाइन भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड भी अगर किया, पढ़ा, तो फिर भी भगवान को रियलाइज हो सकता है। और प्रभुपाद जी, ऐसा श्रुता कीर्ति प्रभु एंड में बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक के लिए बोला, लेकिन ऐसा और 2 इंस्टेंस में हुआ जब वो नेक्टर ऑफ डिवोशन और भगवत गीता पढ़ रहे थे तभी। तो सेम चीज उन्होंने भगवत गीता और नेक्टर ऑफ डिवोशन के बारे में भी बताया। सो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि उनके बुक्स में जो शुद्ध भक्त की जो वाणी होती है उसमें बहुत पावर होता है। अगर कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे होता है तो सिर्फ एक वर्ड पढ़ने से उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है इमीडिएटली। जैसे उदाहरण के तौर पे कथवंग महाराज जो थे, तो भागवत में वर्णन है कि क्षण भर के लिए कथवंग महाराज ने सारे अपने जितने भी इंद्रिय थी सबको भगवान के तरफ केंद्रित कर दिया और उसी समय में वो भगवान को प्राप्त हो गए। तो शिला प्रभुपाद जी को ये डिवोटीज ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी हमको भगवत धाम में जाने के लिए कितना समय है? प्रभुपाद जी बोले 1 मोमेंट। वो लेक्चर आपको शायद पता होगा, बहुत वायरल है वो। तो प्रभुपाद जी बोलते 1 मोमेंट प्रोवाइडेड यू आर रेडी फॉर इट। सो तो विश्वनाथ ठाकुर ये संदर्भ में बताते हैं। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको लगता है कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं, शायद अपराध नहीं किया है। देखिए पहले तो अपराध करते हैं तो भक्ति का जो समय है वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। एक लाइफ से शायद 2 लाइफ, या चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए आप, लेकिन अपराध से ले रहे हो तो करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन शुद्ध नाम लिया अगर आपने, एक सिलेबल भी अगर आपने शुद्ध लिया, तो उसी समय पे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि 2 कारण है जिसके वजह से भक्ति का समय जो है वो लंबा हो जाता है। एक है अपराध की वजह से, और दूसरा है क्योंकि भक्ति अपने आप को छुपाती है भक्त के जीवन में। तो उदाहरण के तौर पे अजामिल का जो लीला है उसमें विश्वनाथ ठाकुर बताता है कि अजामिल को केवल 2 स्टेज थे, केवल 2 स्टेज। हमको कितने स्टेज से जाना पड़ता है? 9 स्टेजेस से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम। और अजामिल श्रद्धा एंड प्रेमा, क्योंकि अपराध कुछ भी नहीं था। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि नॉर्मली अपराध नहीं होता है, या फिर जो भक्ति हो वो अपना जो शक्ति है वो छुपा देती है, ताकि कर्म कांड के स्क्रिप्चर्स भी उसके ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं। वरना देखिए भक्ति जो है वो सारे कर्मों का नाश कर देती है, जितने भी पास्ट कर्म है, प्रेजेंट कर्म है और फ्यूचर कर्म है। तो कर्म ही नहीं बचेंगे तो लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा कर्मकांड स्क्रिप्चर के ऊपर। तो वो प्रिजर्व करने के लिए भक्ति अपने आप को छुपाती है, भक्ति हाइड्स। एंड इसके लिए भक्तों के जीवन में हमको समझ में नहीं आता है कि उनको जो सफरिंग आ रहा है वो क्यों आ रहा है। एक जगह पे एक तात्पर्य में, भागवतम के तात्पर्य में विश्वनाथ ठाकुर ये भी कमेंट्री देते हैं कि किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो भक्त का जो कर्म है हमको पीड़ा क्यों आ रही है, या हमारे कर्म के वजह से आ रही है या भगवान का अरेंजमेंट है। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि अगर उस पीड़ा के बाद अगर हमको भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है, उसमें आश्रय, भगवान के प्रति आश्रय बढ़ जाता है हमारा, वो भावना आती है, तो हम समझ सकते हैं कि ये भगवान का अरेंजमेंट है। और अगर उस पीड़ा को अनुभव करने के बाद हम भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में द्वेष रखते हैं, उसका मतलब है कि एक अपने कर्म से आया है। तो ये 2 चीज विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि ये उससे समझ सकते हैं हम लोग, लिटमस टेस्ट फॉर अ डिवोटी। तो भक्त के जीवन में कर्म नहीं होते एक्चुअली में,
तो ये सारे हमारे आचार्यों ने शास्त्र से प्रमाण देके बताया है, बहुत क्लियर। लेकिन कुछ कारण की वजह से, अगर ये शरीर भी हमारा कर्म है, अगर सारे कर्म नष्ट हो गए तो ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ये शरीर नष्ट होगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे? तो इसके लिए भगवान एक सेम्बलेंस ऑफ कर्मा वो कंटिन्यू रखते हैं डिवोटी के जीवन में, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म है डिवोटी के जीवन में, लेकिन असल में कर्म नहीं है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे सांप डंक मारता है हमको, लेकिन उसमें अगर विष नहीं है तो डंक लगता है हमको, लेकिन हम मरते नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरीके से बताते हैं हमको। हाँ, और शिला प्रभुपाद जी ने देखिए पहले के समय में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की, बहुत सारा बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन एक बार कुलाद्री दास करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो एक बार उनके साथ प्रभुपाद जी का संवाद हुआ, और प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि ये जो मैंने जो स्थापना की है, मैंने जो मूवमेंट की स्थापना की है, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ इस्कॉन है, लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ इस्कॉन जो आने वाला है वो ड्रामेटिकली एकदम अलग ही होगा उससे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जगह सेकेंड हाफ में वर्णाश्रम पे ज़्यादा फोकस होगा, ये जो फार्म कम्युनिटीज है उसके ऊपर फोकस होगा, गृहस्था के जीवन में किस तरीके से वो लोग अपना भक्ति भजन और काम कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी को ऑलरेडी पता था कि जो पहले का जो समय था जब प्रभुपाद जी ने इतने जल्दी प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो धीरे धीरे करके जो प्रचार है उसका जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। तो ये संभव है कि प्रभुपाद जी को ऑलरेडी इसके बारे में पता था और उसी डायरेक्शन में जा रहा है वो, क्योंकि जैसे हम जैसे भक्तों की सेवा करनी है, उनको केयरिंग सिस्टम बनाना, एक डेवलप करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक लेटर में ये भी लिखा है ना कि अगर हम सिर्फ प्रचार पे फोकस करेंगे और भक्तों के ऊपर नहीं करेंगे तो इट इज़ लाइक एडिंग वाटर इन द मिल्क। जो दूध है उसमें सिर्फ पानी भरते रहो और उसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इज बॉइलिंग द मिल्क। मिल्क को आप बॉयल कीजिए ताकि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा हो, उसके बाद प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने दोनों एग्जाम्पल दिए। सो एनीवेज बट सो इसी के यही कारण की वजह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्रभुपाद जी के जो बहुत सिंसियर भक्त है, जैसे राधेश्याम प्रभु जी है, रेवतीपति प्रभु जी है, तो उनको उनकी सहायता करने के लिए हम उनको असिस्ट करें। और यही अटेम्प्ट पे मैंने एक पुस्तक भी लिखी है कि 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, इंग्लिश में, और हिंदी में उसका नाम है सनातन धर्म संचय भंजन। सो ये बुक जो है वो बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में, भगवान के बारे में। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान निराकार है या साकार है, उसके बाद श्रुति स्मृति में क्या फ़र्क है, श्रीमद् भागवतम अल्टीमेट अथॉरिटी कैसे है, वैष्णव श्रीमद् भागवतम को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो किस तरीके से हम प्रमाण दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद कृष्णा जो थे वो रासलीला करते हैं दूसरों की स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ, तो किस तरीके से इस्कॉन वाले उनको सबसे श्रेष्ठ भगवान मानते हैं। फिर क्या अन्य देवी देवता का पूजा करना इक्वल नहीं है कृष्णा की पूजा करने से। फिर कर्म जो है वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम अच्छा कार्य करते हैं फिर भी हम पीड़ा भुगतते हैं, तो क्यों है। उसके बाद लोग बहुत दान धर्म करते हैं मंदिरों में आके, तो भगवान को ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों करें, क्यों नहीं हम जाके कोई गरीबों को उनकी सहायता करें और ये सब धन जो है उनको दे। सो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, और बहुत सारा शास्त्र प्रमाण भी मैंने इसमें फुटनोट में दिया है, उसके एक्सप्लेनेशन के नीचे दिया है, ताकि सब डिवोटीज़ को, और लॉजिकली मैंने बहुत सारे चीज़ें दी है। तो आप डिवोटीज़ के लिए भी एक रेफरेंस बुक हो सकता है रेडीमेड, आपको पूरा का पूरा प्रमाण के साथ, लॉजिक के साथ, कि अगर किसी को हाँ फिर भगवान कृष्ण श्रेष्ठ कैसे है कंपेयर टू शिवा ब्रह्मा और उनमें से। तो ये सब मैंने पूरा उसको कंपाइल किया है हमारे आचार्यों के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, उनके टीचिंग से द्वारा। स्पेशली रूप गोस्वामी के जो पुस्तक है, जीव गोस्वामी के जो संदर्भास है, तो उसका पूरा कंपाइलेशन में मैंने पुस्तक को प्रेजेंट किया है। तो अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं। हमने पुस्तक का जो कीमत है वो अभी, ये पुस्तक जो है वो उसमें से मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, ये तुलसी बुक्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका।
तो जो भी आपका प्रॉफिट जाएगा वो सब मंदिर को जाएगा। एंड हिंदी अभी जस्ट हमने रिलीज़ की है, तो उसका जो प्राइस है 180 है, 180 रुपये। और जो इंग्लिश जो है वो 150 रुपये है, क्योंकि इंग्लिश जो है ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुकी थी, तो ये सेकेंड एडिशन है। सो आप अगर चाहे तो ले सकते हो। और इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब वैष्णव को, सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, स्पेशली जो मैनेजमेंट है उनको, एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप अगर ओके प्रश्न या टिप्पणी है किसी को तो हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। आपने इतने अच्छे से प्रवचन दिया और इतने सारे आचार्यों के कोट्स बताए। जो आपने थोड़ा शुरुआत में बताया था प्रभुपाद का कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आपने इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने कॉन्वर्सेशन सब पढ़े हैं, तो मैंने एक बार ये कॉन्वर्सेशन में सुना था, प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान ने बताया था कि जाओ तुम प्रचार करने के लिए किताब लेंगे। तो अगर आप उसका रेफरेंस अगर या ये जो है ना, जो प्रभुपाद जी ने खुद शेयर किया था भावानंद प्रभु से, जो मायापुर में है ना भावानंद प्रभु, उनको शेयर किया था। और भावानंद प्रभु ने ये जो सिद्धांत प्रभु जी का जो हाँ प्रभुपाद मेमोरीज, जो सिद्धांत प्रभु जी है ना, प्रभुपाद डिसाइपल, उन्होंने प्रभुपाद मेमोरीज का एक बुक लिखा है, तो ये उसमें आता है। भावानंद प्रभु ने ये शेयर किया। इफ यू कुड शेयर दैट। या आई विल शेयर दैट। एंड यू सेड आल्सो इन सीसी में आपने कहा कि चैतन्य चरितामृत में कि 64 माला नहीं कर रहे तो पतित है वो। हाँ। तो इसका भी प्रमाण, हाँ इसका प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है, लेकिन आप सीसी चैतन्य चरितामृत से कहते हैं। हाँ, तो उसमें से मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, मतलब वो प्रमाण अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, बाद बट में मुझे याद है। लेकिन ये जो भावानंद प्रभु वाला है वो मेरे पास मैं दे दूंगा आपको। चलेगा, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने एक तरफ कहा कि हमारा भजन बहुत कमज़ोर है और हमारे में कोई करुणा नहीं है, तो हम कैसे प्रचार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने कहा कि हमारी साधना अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि साधना के बिना हम खुद कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब कैसे हम समझे कि हमको साधना पे भी जोर डालना है और उसके साथ साथ हमको ये भी समझना है कि हमारी भजन में कोई शक्ति नहीं है। राइट। सो उसका मतलब ये है कि हम जब भजन करते हैं ना, तो हमारे भजन में एडवांसमेंट क्यों होता है? हमारे बल से नहीं, कृपा से होता है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हम लोग कृपा सिद्ध भी है। साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध, ये 3 प्रकार के भक्त हैं। तो साधना सिद्ध जो होते हैं वो खुद के बल पे, खुद के पोटेंसी पे वो लोग भजन करते हैं। जो कृपा सिद्ध होते हैं वो वैष्णव की कृपा से वो सिद्ध बन जाते हैं। तो हमको श्रीला प्रभुपाद जी ने एक साधना दी है, एक लाइफस्टाइल दिया उन्होंने, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। अगर वो हम करते हैं तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिलता है हमको। लेकिन ये सोचना कि मेरे साधना की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो गलत फहमी है। सो भक्त लोग जो तो धीरे धीरे करके नम्र भी बनते हैं समय के साथ, जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो नम्रता की वजह से भी उनको लगता है कि हमारा साधना में इतना कोई पावर नहीं है, ये सब गुरु की कृपा है। तो अल्टीमेटली गुरु की कृपा से हम वो जैसे देखिए, प्रभुपाद जी ने एक जगह पे ऐसा भी आपको शायद सबको पता होगा ये, कि प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बोला था कि अनलेस यू आर 100% प्योर यू कैन नॉट गो बैक टू गॉड। आप जब तक 100% शुद्ध नहीं है, आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते हो। तो डिसाइपल थोड़े से ये हो गए, डिसअपॉइंट हो गए कि प्रभुपाद जी लाइक बहुत, हमको तो एकदम टाइम लगेगा फिर। तो प्रभुपाद जी ने वापस थोड़ी उदारता दिखाई और उन्होंने बोला ओके 90%, 90-95 जो भी है, लेकिन एसेंस उसका ये है कि 90% पे आए। फिर भी भक्त को लगा कि अरे प्रभुपाद जी ये भी बहुत है, तो 90% से 80% में फाइनली वो 75% में आए। और फिर भी उनको लगा कि अरे ये भी बहुत है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला चिंता मत कीजिए, सिर्फ मेरी धोती पकड़ के रखिए, मैं आपको पिछले द्वार से भगवान के धाम में लेके जाऊंगा। श्रीला प्रभुपाद की सो प्रभुपाद चाहे तो हमको, देखिए निष्ठा के स्तर पर आना वो हमारा प्रयत्न है, वो हमको करना चाहिए, निष्ठा के स्तर तक आना। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में हम देखिए, हम भागवत धाम में जाएंगे और बोलेंगे भगवान ये आप जानते नहीं हो, ये डिवोटी ऐसा है,
उसको कहाँ से आप ले लिया इधर? सबके बारे में हम ये करेंगे गॉसिप उधर जाके भगवत धाम में। अनर्थ निवृत्त में है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भगवान के धाम में आ सकते हैं? तो इसके लिए 75% जितना अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए, तो निष्ठा तक ही हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आगे के स्टेज है वो तो भगवान की कृपा से ही आते हैं। जैसे जरूरी नहीं है आपने निष्ठा कर दी, निष्ठा पे आ गए, लेकिन क्या आपको नाम में रुचि आएगा? क्या आपको आसक्ति आएगा? क्या आपको भाव मिलेगा? ये तो भगवान के ऊपर है। भगवान रुचि ना दे वो उनके ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु के पास जब ये आए थे मुकुंदत्त, क्योंकि मुकुंदत्त थोड़ा मायावाद का प्रचार कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुकुंदत्त को मेरे सामने मत लेके आओ, और उसको करोड़ों जन्म तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगी, उसके बाद उसको प्रेम प्राप्त होगा। तो मुकुंदत्त बहुत खुश हुए, वो तो नाचने लगे कि करोड़ों जन्मों के बाद मुझे एटलीस्ट मिलेगा तो सही। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एक जीवन में कब मिलेगा, नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा इस्कॉन और कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट? तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और प्रयास करना है कि निष्ठा के स्टेज पे आए। उसके बाद प्रभुपाद जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो निष्ठा से हमको डायरेक्टली प्रेमा तक लेके जा सकते हैं उनकी कृपा से। तो आप समझ में आ गया आपको? ये निष्ठा की स्टेज में हम अपने एंडेवर से जा सकते हैं और उसके बाद में आचार्य लेके मतलब जाते हैं। देखिए, अपने एंडेवर मतलब हर स्टेज में हमको कृपा तो चाहिए ही, हाँ, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो है वो हमारा प्रयास है। और रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम डोमिनेंट फैक्टर भगवान की कृपा है, और हमारा प्रयास उसमें बहुत कम है, क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कष्ट करना पड़ रहा है रुचि के स्टेज पे। निष्ठा में आपको बहुत कष्ट होके जाना पड़ेगा आगे, अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करके, समझे आप? उस तरीके से। तो आपका प्रश्न क्या है वैसे? अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारा एंडेवर बहुत इंपॉर्टेंट है अनर्थ निवृत्ति में, और कृपा भगवान का कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ? इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फैक्टर है, जो कारण है, जैसे यशोदा और दामोदर लीला में हम देख सकते हैं ये उदाहरण, कि यशोदा मैया जब तक उन्होंने सबसे अपना बेस्ट प्रयास नहीं किया, तब तक भगवान अपने आप को बांधने से इनकार किए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया ने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया है, तो भगवान की कृपा शक्ति ने टेक ओवर कर लिया। उनकी इच्छा शक्ति और कृपा शक्ति के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जब कृपा शक्ति को लगा कि नहीं, अब भक्तों को कृपा देना है, तो कृपा शक्ति ने हरा दिया इच्छा शक्ति को, और भगवान बंध गए उस तरीके से। तो हमारा प्रयास उस तरीके से होना चाहिए कि बेस्ट देना है भगवान को, फिर उनके ऊपर छोड़ना है, ऐसा। ओके, आई थिंक हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप लीजिए। हरे कृष्ण। और आइए हम प्रेम देते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे राम